Hello everyone, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Did you watch the first video on exponents for grade 7? I have covered many things in that. I have also done many questions based on exponents. Please go through that video if you have not gone through it already. I'll attach the link of the video in the description of this video. In this particular video, we are going to discuss about the laws of exponent, which are very important part of exponents. If you are clear with it, then you can go ahead and solve every kind of question on exponents. So if you want to watch along with me, learn along with me, then please like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. Let's start. Now let's learn laws of exponents. So laws of exponents on integers can be also extended to rational numbers. मतलब fractions भी आ गए, सब कुछ आ गया, rational numbers सारे आ गए, वो भी आ गए. So for any rational number a by b and positive integers m and n, यहाँ पर rules लिखे हुए हैं. When we multiply two numbers, okay, with exponential numbers, power numbers, तो हम उनके exponents को add कर देते हैं. We will go into detail. बस अभी मैं सिर्फ एक brief दे रही हूँ. So next है when we divide two rational numbers, exponential numbers, तो उनके जो exponents हैं वो subtract होते हैं, provided जैसे यहाँ पर m minus n हुआ है. क्यों? क्योंकि m is greater than n. Alright. अगर m जो है छोटा हो, m is less than n हो, तो नीचे जो है वो सब्सट्रैक्शन होगा एक्सपोनेंट्स का. ऑलराइट, सेम. और यहाँ पर बेस भी सबका सेम ही है. ऑलराइट, ये बेस सेम के लिए है. प्लीज रिमेंबर, बेस इज a by b here as well, similarly here also and further also down we will see. बेस इज नॉट चेंजिंग. यहाँ पर 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4 की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर बात हो रही है बेस सेम है. यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर भी 2/3, उसी की बात हो रही है. नाउ 4 इज a by b raised to the power m, which is again raised to the power of n, another exponent. एक एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट पावर है, तो क्या होगा, वहां पर जाके एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं. जब ऐसे रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं वहां पर एक्सपोनेंट्स का एडिशन होता है. पर जब वन एक्सपोनेंट इज रेज टू अनदर, वहां पे एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस. विल गो इनटू डिटेल्स. अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो कभी अगर ऐसे जो ये है एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो, तो इसका मतलब वो 1 by a by b to the power n है. मतलब उसका रेसिप्रोकल जो है लिखूंगी तो मेरा ये पॉजिटिव आएगा. ऑलराइट, मतलब जो डिनोमिनेटर है उस पर एक एक्सपोनेंट चढ़ा है, तभी मेरा जो एक्सपोनेंशियल पावर, मैं इसको अब ऊपर ले आऊंगी, मतलब न्यूमरेटर में लिखूंगी, तो उसे क्या करूंगी, तब मैं उसका पावर नेगेटिव कर दूंगी. और जब मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूंगी तब वो पावर जो है उसका पॉजिटिव आएगा. एंड देन दिस पावर इज शेयर्ड बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हियर. सो it can also be written as a to the power n by b to the power n. And 1 divided by a to the power n by b to the power n क्या है? It's reciprocal, b to the power n by a to the power n. और ये पावर कॉमन करके मैं बाहर भी ऐसे n को लिख सकती हूँ. One more important rule. Whenever any base number is raised to the power 0, it means 1. मतलब वो है ही नहीं. We'll learn that in detail later. वो नंबर मतलब बिल्कुल भी मल्टीप्लाई अपने आप से हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, 1 ही है सिर्फ. और a तो बार b रेज तो बार -1 इज इक्वल टू b बाई a. ये हमने अब b यहाँ पर देखा. जब a तो बार b इक्वल टू -1 है, इट मीन्स पावर जो है वो होगा पॉजिटिव अगर मैं उसको लिखूंगी डिनोमिनेटर में. ऑलराइट, so let's learn each one of these laws in detail in our next video. Now let's do the first exponential law where we multiply two exponential numbers. तो वहाँ पर हमने पहले भी देख लिया था पिछले वाले स्लाइड में कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, m plus n, इस तरह से. So let's solve an example. Before that, let me read this out. If we have to multiply the powers with same base, सबसे important word है same base. यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 3 हो, different fractions हो, rational numbers हो, नहीं चलेगा, same base हो, then we add the exponents. So यहाँ पर 3 cube है and another one is 3 raised to the power of 5. तो 3 cube क्या है, 3 multiplied with itself 3 times, और 3 to the raised to the power 5 क्या है,
3 मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 5 टाइम्स, यहाँ पर 3 क्यूब मीन्स 3 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स, मैंने शायद गलत बोल दिया। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 क्यूब इंटू 3 5, हम एक से इस तरह से एक्सपैंड करके उसको लिखेंगे, मतलब 8 3s आर गेटिंग मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, राइट। 3 इंटू 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 3। तो अगर 8 5 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन आई कैन राइट लाइक दिस 3 रेज़ टू पावर 8। एक्सपैंड करने के बाद फाइनली मैं यही पहुंच रही हूँ रिजल्ट पे। नाउ लेट्स डू दिस यूजिंग दिस एक्सपोनेंशियल रूल। तो यहाँ पर अगर मैं 3 + 5 करूँगी, then what will be the answer? It will be 3 raised to the power of 8. All right. और एक चीज लेते हैं, let's take another example where I am taking, let's say m is equal to 3 and n is equal to -2. तो मैंने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया है, वही बेस रखते हैं 3 को। सो 3 क्यूब हमने पहले भी देखा, इट्स 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 रेज़ टू पावर -2 क्या है, इसे ध्यान से देखो। इट इज एक्चुअली, जब मेरा डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल नंबर रहता है, जैसे 1/3², तो मैं उसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 3 रेज़ टू पावर -2। मतलब मैं जब ऊपर इसे ले आऊंगी, इसका रेसिप्रोकल बनाऊंगी, तो मेरा पावर जो है नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव जैसे ही लिखूंगी। ये देखने से तुरंत समझ लेना, नेगेटिव ऐसे देख लेने से तुरंत समझ, -2 है यहाँ पर, और कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, -4 -5 भी हो सकता है, जो भी हो। दैट मीन्स दैट यहाँ एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है दैट इज एन एक्सपोनेंशियल नंबर। ऑल राइट, सो ये इसको एक्सपैंड कर देंगे, ये क्या है 1/3 इंटू 3, राइट। सो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, अगर 3 क्यूब इंटू 3 -2, तो मेरा क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इंटू 3 इन डिनोमिनेटर। सो ये 3 एंड 3 कैंसिल हो गए, बचा क्या 3 इंटू 1। सो 3 इंटू 1 इज 3। अभी मैं इसको ये रूल अप्लाई करके करती हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करके करती हूँ। सो 3 क्यूब इंटू 3, तो रेज़ टू पावर ऑफ -2 क्या होगा 3 प्लस -2, यही तो लिखूंगी मैं, बिकॉज इट इज m + n। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट रिमूव करूंगी, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस आएगा। सो 3 - 2 हो गया, 3 - 2 मतलब 3 raised to the power 1 विच इज इक्वल टू 3। तो मैं आंसर सेम में ही पहुंच रही हूँ, राइट। 3 और 3 दोनों केस में, चाहे एक्सपैंड करके कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करूं, या तो फिर मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऐड करूं, आंसर मेरा सेम ही आ रहा है। वी विल एक्सप्लोर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, देन वी विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। ऑल राइट, लेट्स लर्न द नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल लॉ। Now let's learn the second law of exponents. When we divide two exponential numbers with the same base, तो क्या होता है? If we have to divide the powers with same base, then we subtract the exponents. जैसे कि यहाँ पर m is greater than n, तो क्या होगा, जो बेस है रेज टू पावर ऑफ m - n, मतलब उनके जो पावर्स हैं जब हम डिवाइड करते हैं वी विल सब्ट्रैक्ट देम। ओके, डिवीजन के साथ सब्सट्रैक्शन को याद रखो एक्सपोनेंट्स का, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एक्सपोनेंशियल नंबर्स के साथ यहाँ पर एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट याद रखो, सिंपल है। ओके, सो 2 द पावर, मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 रेज़ टू पावर ऑफ 7 और 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5, तो उनको इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। सो 2 रेज़ टू पावर 7 को मैंने इस तरह से लिख लिया है एक्सपैंडेड फॉर्म में। सिमिलरली 2 रेज़ टू पावर 5 को ऐसे लिख लिया है। नाउ व्हेन आई डिवाइड दीज टू, इसका मतलब 2 टू द पावर 7 मेरा न्यूमरेटर में आया, 2 टू द पावर 5 है जो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी, बिकॉज आई एम सिंपली डिवाइडिंग हियर। तो यहाँ पर सब कैंसिल आउट कर देंगे, कॉमन है 5 2s, तो उनको मैं कैंसिल कर दूंगी। तो मेरा डिनोमिनेटर में बचेगा क्या, सॉरी ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, डिनोमिनेटर मेरा बचेगा 1 और ऊपर रह जाएगा 2 इंटू 2, तो फाइनली ये हो गया कितना 2²। अब सेम चीज 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, सेम चीज मैं करूंगी अप्लाइंग m - n वेयर m इज ग्रेटर देन n। सो यहाँ पर 7 इज ग्रेटर देन 5, ये तो पक्का है हमारा। सो यहाँ पर जो है पावर में सब्ट्रैक्ट करूंगी 7 - 5, तो क्या आएगा फाइनल आंसर 2²। तो मैं डिविजन जब करती हूँ नॉर्मली, लाइक एक्सपैंडिंग एंड देन सिंप्लीफाइंग रिमूविंग द कॉमन फैक्टर्स, तो भी 2² आ रहा है, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऐड कर यूज कर रही हूँ तो भी मेरा 2² आ रहा है। सो दिस इज वेरी सिंपल। डिवीजन के साथ याद रखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स, और मल्टीप्लिकेशन के साथ याद रखना है एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन वेयर डिवीजन तो हम कर रहे हैं 2 रैशनल नंबर्स का। वो रैशनल नंबर्स मतलब इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। सो जब हम करें डिवीजन, वहां पर जब
n इज ग्रेटर देन m, मतलब जो डिवाइजर है उसका जो एक्सपोनेंट है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिविडेंड, तब क्या होगा, हम जो है सब्सट्रैक्शन तो करेंगे ऑफ द एक्सपोनेंट्स, पर कहाँ करेंगे, इन द डिनोमिनेटर. विल राइट लाइक दिस 1 बाय a बाय b n माइनस m, क्योंकि n बड़ा है सो n पहले आएगा माइनस m. वेयर वी विल डू दिस, इन द डिनोमिनेटर, एंड विल राइट 1 बाय a बाय b n माइनस m. now एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 11. सो यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय 5 11 माइनस 10 इन द डिनोमिनेटर. ऑल राइट, तो 11 माइनस 10 अगर मैं डिनोमिनेटर करूंगी तो क्या होगा, मेरा रह गया डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर ऑफ 1, जो कि है 1 बाई 5. और उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू पावर माइनस 1. ये इस पे अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं. वी आर गोइंग टू लर्न दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन वन ऑफ आवर लेटर वीडियोस. सो यहाँ पर इसको हम एक्सपैंड करके अब करते हैं सेम क्वेश्चन को, 5 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 11 को. सो 5 रेज़ टू पावर 10 क्या है, 5 मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ 10 टाइम्स. तो मैं पहले ये लिख देती हूँ, 4 8 और 2 बार 5 एंड 2 5. नाउ सिमिलरली मुझे 5 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि 5 रेज़ टू पावर 11 है. ऑल राइट, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 5 10 11 टाइम्स, करेक्ट है. सो 5 रिटन 10 मल्टीप्लाइड 10 टाइम्स इन द न्यूमरेटर, 5 मल्टीप्लाइड 10 टाइम्स इन द डिनोमिनेटर. तो मैं 5 डायरेक्टली कैंसिल आउट करूंगी, राइट. तो बचा एक ही 5 इन द डिनोमिनेटर, और ऊपर क्या बचा 1, यहाँ भी 1. सो क्या हो गया, 1 बाई 5 इंटू 1 डिनोमिनेटर विच इज 1 बाई 5, राइट. हम इसी पे आके फाइनली आंसर में पहुंच गए. यहाँ भी 1 बाई 5 आ रहा है. व्हेन आई एम यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मैं क्या कर रही हूँ, डिविडेंड का जो है वो बड़ा है पावर, तो उसको पहले लिख रही हूँ एंड देन आई एम सब्सट्रैक्टिंग द 10 फ्रॉम इट. सो 1 बाई 5 11 माइनस 10 मेरा 1 बाई 5 बनता है. यहाँ पर भी ऐसे एक्सपैंड करके कैंसिल आउट करूंगी तो भी मेरा 1 बाई 5 आता है. तो क्यों नहीं मैं ये रूल अप्लाई करूँ, बिकॉज इट इज मेकिंग थिंग्स मच इजियर फॉर मी. ऐसे कैंसिल आउट करना, सिंप्लीफाई करना इज नॉट ईजी, इट्स वेरी कुम्बसम, गलती होने की भी चांसेस है. यहाँ पर एक्सपोनेंट्स तो 10 और 11 है, बड़े बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, इन सम रनिंग इनटू 4 और 5 डिजिट्स एक्सपोनेंट. तब वहां पर कितना इजी होगा जब मैं 1 बाई 5 और 1 बाई वट एवर द बेस नंबर रेज़ टू द पावर ऑफ सब्सट्रैक्शन करूँ एक्सपोनेंट्स का इन द डिनोमिनेटर. मेरा आंसर बहुत इजीली सही निकलेगा, राइट. सो इसको मैं अभी हटा देती हूँ, जस्ट मैंने फॉर लर्निंग से यहाँ पर लिख लिया था. वी विल सी दिस इन वन ऑफ आवर नेक्स्ट स्लाइड्स. ऑल राइट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. कुछ घबराने वाली बात नहीं है. जब m ग्रेटर देन n होता है, मतलब डिविडेंड का पावर बड़ा है n से, तो वो हमने पहले वाले स्लाइड में देखा है, तो हम करते हैं a बाई b m माइनस n, राइट. सो 5 11 डिवाइडेड बाई 5 10, ये हमने पहले एग्जाम्पल भी देखा है, दैट विल बी 5 11 माइनस 10 विच इज 5 रेज़ टू पावर 1 विच इज 5. और जब मेरा n जो है वो बड़ा हो, then I will do the subtraction in the denominator 1 by a by b n minus m, इस तरह से and I'll get answer as 1 by 5. तो यही difference है. ये we have completed the division law properly, but फिर भी हम और examples करेंगे to get hold of the concept even better. Now let's understand how to take the power of a power. Now take the power of a power मतलब क्या है? Take the power of power मतलब you are an expression of a base raised to a certain power. मतलब जैसे कि यहाँ पर है a by b to the power m, ये expression है which is raised to a certain power, and we then raise the whole expression, this whole expression to another power. उसको कहते हैं taking the power to another power. ऐसे फिर से ऊपर उसके ऊपर और एक अगर मान लो आ जाता है एक्सपोनेंट या पावर, तो उसको हम कहते हैं टेकिंग द पावर ऑफ अ पावर. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक्चुअली हमने एडिशन देख लिया, एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन देख लिया. अब मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है, प्लीज पे अटेंशन. ओनली इन व्हेन वी आर टेकिंग द पावर ऑफ अ पावर. m से पहले रेज्ड है एक्सप्रेशन, ये एक टोटल एक्सप्रेशन है, ये बेस बनता है फॉर n.
ये बेस नंबर एंटायर a by b raised to the power of m, यहां पर दिखाती हूँ. So I'll erase this later. A by b raised to the power m is the base number for n. It is again raised to the power of n. तो ये जो entire thing है, it is called as taking power of power है. यहाँ पर हम आंसर कैसे निकालते हैं? We multiply the exponents. Okay? तो m into n करके mn होता है. So यहाँ पर वैसे 2 squared in raised to the power of 4. इसको करेंगे पहले सॉल्व. ऑलराइट, सो क्या 2 स्क्वायर को आप अभी अगर आप फॉर सम टाइम छुपा लो तो क्या है इधर? रेज टू द पावर ऑफ 4 बचता है, राइट? मतलब अगर मैं मानो 2 टू द पावर 4 करूं तो उसको कैसे लिखूंगी? अगर एक्सपैंड करूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही लिखूंगी. अब 2 स्क्वायर रेज टू द पावर 4, मेरा बेस नंबर यहाँ पर 2 था. यहाँ पर जब रेज टू द पावर 4 क्या है? 2 स्क्वायर. तो मतलब क्या है? 2 squared is multiplied 4 times to itself. 2 squared into 2 squared into 2 squared into 2 squared, right? तो ये है expanded form. तो इसको अगर मैं इसको solve करने जाऊं तो 2 square into 2 square into 2 square into 2 square कैसे होगा? I'll add the exponents. ये पहला law of exponent हम use करेंगे instead of trying to, या तो फिर open भी कर सकते हैं. इसको further expand करेंगे. अगर मान लो इसको फर्दर एक्सपैंड कर दूं 2 इंटू 2, मतलब ये 2 स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2, फर्स्ट 2 इंटू 2, ये दूसरा 2 स्क्वायर है, ये तीसरा 2 स्क्वायर है और ये फोर्थ 2 स्क्वायर है. तो क्या होगा? 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज़ टू द पावर 8 ही आएगा. सो मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था. अब मैं ये वाला रूल अप्लाई करके सेम चीज सेम आंसर पे पहुंचती हूँ. कैसे? 2 square raised to the power of 4, right? तो यहां पर मैं एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई करूंगी, 2 इंटू 4 करूंगी, इंटू 4 ऐसे लिख लेती हूं. अगर आप डॉट नहीं समझते, डॉट ऑल्सो मीन्स दिस क्रॉस ओनली. ओके, सिंबल सिर्फ चेंज हुआ है. सो इट मीन्स 2 रेज टू द पावर ऑफ 8. 2 इंटू 4 8 है, सो 2 रेज टू द पावर 8. हम सेम आंसर पे ही पहुंच रहे हैं. तो व्हाई नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, by heart this formula, use this taking the power of a power rule to reach to the power 8 instead of opening like this. ये तो छोटा सा मैंने नंबर लिया फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है, पावर भी बेस नंबर भी. इस केस में हम फंस जाएंगे. सो बेटर टू गो फॉर taking the power of a power, right? If you have any doubts, please let me know in the comment section. Now let's understand this law of exponent where the exponential power is negative. तो उसमें क्या होता है? a by b raised to the power minus n can be written as 1 by a by b raised to the power of n. मतलब जो मैंने दिखाया था 5 raised to the power minus 1 is actually nothing but 1 by 5. एक फ्रैक्शन है 1 by 5, उसको मैं 5 to the power raised to the power of minus 1 जैसे भी लिख सकती हूँ. वैसे 2 by 5 अगर हो तो मैं उसे क्या कैसे लिख सकती हूँ? 2 into 1 by 5 है, right? तो it can be also be written as 2 raised to the power of 2 into 5 raised to the power of minus 1. All right, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो ये रूल अप्लाई करके हम यहां पर पहुंच रहे हैं. मैंने 5 लिया है बेस नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है. सो उस हिसाब से वी हैव टू राइट लाइक दिस. तो मान लो मैं एक इसी को ले लेती हूँ 2 by 5. 2 by 5 रेज टू पावर ऑफ -2. तो वो क्या है एक्चुअली? बेसिकली इट्स 1 by 2 by 5 रेज टू पावर ऑफ 2 which is 2 by 5 squared. तो इसको एक्चुअली मैं देखूं तो इसको मैं इंडिविजुअली लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. आई कैन मेक 2 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर. क्यों, कैसे, वो भी आप देख लो. 2 by 5 squared is what? Whole squared is what? 2 by 5 multiplied by 2 by 5. 2 squared by 5 squared is what? 2 into 2 multiplied by 5 by 5. 5 into 5. तो सेम ही हुआ. So यहाँ पर 2 by 5 squared can be written as 1 by 2 squared by 5 squared, right? तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1 divided by 2 squared by 5 squared, सेम चीज यहाँ पर जो लिखा है वो इस तरह से लिख दिया डिविजन सिंबल देके. Now I will find the reciprocal, it will become 5 squared by 2 squared, right? तो ये हम पहुंच गए किधर? We have reached here till this step, right? ये स्टेप तक हम पहुंच गए हैं. So it becomes 5 squared by 2 squared. It can also be written as 5 by 2 whole square, right? हमने स्टार्ट कहां से किया था? I'll erase this part, और हाँ ये erase कर देती हूँ.
ये तो बस समझाने के लिए ही मैंने लिखा था. दिस इज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन. तो हमने स्टार्ट किया था 2/5 रेज़ टू पावर -2 और पहुंचे किधर 5/2 होल स्क्वायर. बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. मैं चाहूं डिपेंडिंग ऑन माई क्या मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/2² 5², ऐसे भी लिख सकती हूँ 5²2², या फिर फाइनली मैं इसे 5/2 होल स्क्वायर जैसे भी लिख सकती हूँ. ऑलराइट, ये बहुत जगहों पर काम में आएगा. एज वी सॉल्व क्वेश्चंस विल गेट टू नो. ओके, how to express rational numbers with exponential value 0. Let's understand this. Now what's written over here? A by B, that's a rational number, raised to power 0 is equal to 1. इसका मतलब, let's see, इसका मतलब ये होगा, जो अगर मैं 3 raised to power 0 लूंगी, इसका वैल्यू 1 होगा. तो ऐसे कैसे? Let's understand this. Suppose I take 3 raised to power 5 and I divide it with 3 raised to power 5. अब ये 3 raised to power 5 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं एक्सपैंड कर देती हूँ. So it will be 3 multiplied to itself 5 times in the numerator, or also same thing in the denominator. Now क्योंकि कॉमन जो कुछ भी है वो उन्हें कैंसिल आउट करना पड़ता है, so I am cancelling out. तो क्या रह गया मेरा 3 raised to power 5 divided by 3 raised to power 5, 1/1, so which is 1. अब मैं सेम चीज को 3 raised to power 5 divided by 3 raised to power 5 I am going to use exponential law, that law of division, to find out the value. तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा एक्सपोनेंट्स में. सो 5 - 5 करूंगी तो क्या बचेगा, 3 raised to power 1 0. सो ये वैल्यू 1 हम इस तरह से पहुंच रहे हैं, यहाँ पर 3 to the power 0 एक्सपोनेंशियल रूल लेके पहुंच रहे. दैट मीन्स 3 raised to power, दिस इंप्लाइज दैट 3 raised to power, सॉरी ये मैंने एक जगह पर लिख दिया, 3 raised to power 0 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, नेगेटिव इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, मतलब लाइक दिस, रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ऑलराइट, तो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं ऑल द एक्सपोनेंशियल लॉ. द लास्ट लॉ वी विल अंडरस्टैंड एंड देन we'll finish off with laws of exponents. Let's understand how to express rational numbers with exponent 1. Now a by b raised to the power of 1 is equal to a by b. What does it mean? That any rational number raised to exponent value 1 will always be, the final value will be always equal to the rational number itself. Now what does 2 square mean? Means 2 is getting multiplied to itself 2 times. That is what 2 square means. Now if I am going to write 2 raised to the power 1, that means 2 will get multiplied to itself 1 time. अगर 2 सिर्फ अपने आप 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होने वाला है तो क्या वैल्यू आएगा, 2. एनी नंबर यू टेक अ बिग नंबर 1001, तो उसका क्या आएगा, 1000 raised to the power of 1, that will be 1000 itself. That means default exponent for any number, default अगर exponent value हम देखें, value of exponent for any rational number is always equal to 1. मतलब हम जब नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, it means there is a one I mean all of them are raised to power of 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. डिफॉल्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ऐसे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस साइड भी और नेगेटिव इंटीजर्स के साइड भी. एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमेशा 1 है. दैट इज व्हाई द नंबर इज अपीयरिंग ओनली 1 टाइम. ऑल राइट.